Hello, dear students. In previous lecture, we have studied up to question number 16. Now we are starting question number 17. Determine the values of C that satisfy magnitude of C into U vector is equal to 3, where U vector is given I vector plus 2J vector plus 3K vector. Now look at this. We can write, sorry, given that u vector is equal to I vector plus 2j cap plus 3k cap, therefore magnitude of u vector is given under root of 1 square plus 2 square plus 3 square. Therefore we can say that magnitude of u vector is equal to, it is nothing but under root of 1 plus 4 plus 9, that is under root of 14. Alright, 9 plus 4, 13 plus 1 is 14, under root of 14. Given that magnitude of C into U vector is equal to 3. Therefore, we can say that C into magnitude of U vector is equal to 3. Now substitute this value here. Therefore, or we can say that therefore C square is nothing but equal to 3 upon or 9 upon magnitude of U vector whole square. Therefore, we can say that C square is equal to 9 upon 40, and therefore value of C is nothing but plus or minus 3 upon root 40. Why this plus or minus is there? Because vector is in any direction, its magnitude is same. Well, that's why we have taken square. ठीक है, square क्यों लिया है? क्योंकि it is magnitude of C vector into U vector is same as that of magnitude of minus C vector into plus C vector. यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, C square is equal to 9 upon magnitude of, to make them both positive. ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट निकाल के इसकी वैल्यू C की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 3 upon root 40. Got it? Okay. Next question, question number 18. Find a unit vector in the direction of U vector and in the direction opposite to U vector. Now unit vector in any direction is given that the vector upon its magnitude, means first of all we are going to find magnitude of this U vector. Now given U vector is equal to 8i cap plus 3j cap minus k cap. Therefore magnitude of U vector is equal to under root of 8 square is 64 plus 3 square is 9 plus 1. Taking addition, it is under root of 74. Magnitude of U vector is nothing but root 74. Means that is 37 into 2, means we cannot divide it or we cannot factorize it. We cannot find any number which is the square root of any number. Means we cannot write in mixed third form. It is same root 74. It is the magnitude of U vector. Therefore, first one is unit vector in the direction of U vector is U cap is equal to U vector upon magnitude of U vector. That is 1 by root 74 into 8i cap plus 3j cap minus k cap. And second one, unit vector in direction opposite of U vector, opposite to U vector is, it is nothing but minus U cap, and that is minus U vector upon magnitude of U vector, that is minus 1 upon root 74
into 8 I cap plus 3 j cap minus k cap. This is just revision of the concepts. ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, लेकिन सीटी या जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये बोर्ड के हिसाब से और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट स्ट्रांग होने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नाउ लुक एट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Find a vector in the direction of a vector is equal to I cap plus 2j cap that has magnitude of 7 units. Now look at this. Given vector is I cap minus 2j cap. First of all, we are going to find a unit vector in this direction and then multiply it by 7 means it becomes a vector of magnitude 7 units. यानी कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर निकालना है तो पहले उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालो और उसको उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, तो उसी डायरेक्शन का 7 यूनिट्स या जो भी यूनिट दिए हैं उतना वेक्टर मिल जाएगा आपको। गिवन है a वेक्टर इज इक्वल टू I cap minus 2j cap. Therefore we can say that magnitude of a vector is equal to under root of 1 square is 1 and minus 2 square is 4, that is under root of 5. Therefore unit vector in the direction of a vector is given by a cap is equal to a vector upon magnitude of a vector, that is 1 upon root 5 into I cap minus 2j cap. Therefore vector of magnitude 7 is given by, suppose we will denote it by b vector, that is 7 into a cap, that is 7 root 5 into I cap minus 2j cap. This is your required answer. समझ में आया आपको? In the same direction, अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रीड क्वेश्चन नंबर 20 केयरफुली। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स एंड एक्सिस। तो ये 4th लेक्चर में हमने इसके बारे में एक वीडियो भी देखा था, ये कंसेप्ट पूरे हमने अंडरस्टूड किए हुए हैं। तो याद करो, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन इज नथिंग बट इट्स मॉड्यूलस ऑफ z कोऑर्डिनेट। यानी यहां पे हम पहले लिखते हैं कि गिवन पॉइंट P has coordinates 4, minus 2, 6. Compare it with x, y, z. So therefore we have the values x is equal to 4, y is equal to minus 2, z is equal to 6. तो पहला है distance of the point from distance of P from xy plane. ये क्या आएगा? That is nothing but mod of z. mod of z यानी कितना आएगा? That is nothing but 6. z की वैल्यू 6 है तो इसका 6, यानी that point is at a distance of 6 units from xy plane. ठीक है। दूसरा जो है सेकेंड, distance of point P from yz plane. अगर yz plane है तो क्या आएगा ये? That is nothing but mod of x. x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो mod of 4 is nothing but 4. Third one, that is ABC. I will write ABC. Third one, C is distance of point P from zx plane or xz plane is nothing but mod of y, and mod of y is nothing but 2. इतना समझ में आया? अब आगे चलेंगे x एक्सिस। तो याद रखो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, ये क्या होता है?
that is nothing but under root of y square plus z square. x-axis है तो under root of y square plus z square, that is nothing but under root of y square यानी 4 plus z square यानी 36, तो ये आएगा root 40 और root 40 means it is nothing but 2 root 10. सेम इसी तरीके से E डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्री फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस से हमें निकालना है डिस्टेंस तो दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर इज 16 एंड z स्क्वायर इज 36, अंडर रूट ऑफ 52 मींस 2 रूट 13. ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. f में मैं बताता हूं distance of point P from z axis is nothing but under root of x square plus y square, and under root of x square plus y square is under root of 4 square is 16 and 2 square is 4. It is 20 means it is 2 root 5. These are the thing but the distances of that point P from x axis, y axis and z axis respectively. ये बहुत इजी है, इसके लिए फॉर्मूले या कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. वो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट है. अंदाजे से हम क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिख सकते, उसको अंडरस्टूड करके लेना है. इसी में अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं सिर्फ बताता हूं कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो इसमें एक जी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी अगर नहीं दिया है, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, डिस्टेंस ऑफ एनी point P from origin is under root of x square plus y square plus z square. ये ऐसा आएगा. तो ये अंडर रूट में कितना आएगा, 4 स्क्वायर यानी 16, 2 स्क्वायर यानी 4 और 36, तो ये टोटल मिलके आएगा अंडर रूट ऑफ 56. यहां पे दिखता है नहीं पता, अंडर रूट ऑफ 56, तो अंडर रूट ऑफ 56 मीन्स इट इज नथिंग बट कितना आएगा, 4 इंटू रूट 56 मीन्स 4 इंटू अंडर ऑफ 4 इंटू 40 मीन्स 2 इंटू अंडर ऑफ 14, ऐसा आएगा आंसर. ठीक है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप नोट्स में देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 21 ये आपको होमवर्क में देता हूं. तो इसके आगे हम देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 22, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 20. दैट इज देयर आर आल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वन पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम सम प्लेन्स एंड सम एक्सिस एंड ओरिजिन. ठीक है, तो ये सब कैसे डिस्टेंस निकालना ये आपको हो गया है. तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 21. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. Now read question number 22. Find the coordinates of the point which is located at 3 units behind YZ plane, 4 units to the right of XZ plane and 5 units above the XY plane. Means here they have considered the one as usual method to represent x-axis, y-axis and z-axis. In general, in geometry we are representing x-axis here, y-axis here and z-axis in above direction. Now this direction of x-axis is considered to be positive x-axis, this is positive y-axis and this is positive z-axis. In this way, this direction of z-axis is always considered to be above the xy plane and this direction is below the xy plane. Means in above the xy plane all z coordinates are positive and on below the xy plane all z coordinates are negative. Similarly, now suppose if you consider this as a yz plane, then this direction यानी उसे कहते हैं yz plane का in front direction and behind that, now this is the yz plane, so behind that it is negative z x axis. Means behind the yz plane x coordinates are negative, in front of yz plane the x coordinates are positive. And similarly for xz plane, this is xz plane, on the right side of xz plane there is a y axis,
मीन्स एक्जेक्ट प्लेन के राइट साइड में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गए और एक्जेक्ट प्लेन के लेफ्ट साइड में y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो गए। अब डिस्टेंस पता है तो सिर्फ हमें प्लस और माइनस साइन अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स बिहाइंड, राइट एंड अबव और बिलो, ठीक है, ये वर्ड यूज करके हमें साइन कन्वेंशन देना है। नाउ नंबर 1, यहां पे डिटेल में आप लिखिए, सपोज रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी, therefore P has coordinates। आप थोड़ा डिटेल में लिखिए इसको, जैसे कि यहां पे पहला स्टेटमेंट लिखिए कि 3 units behind yz plane means x is nothing but equal to -3, तो इसका x कोऑर्डिनेट -3 behind the yz plane, इसलिए इसका माइनस आ गया। in front of yz plane, ठीक है, ऐसा अगर आता है तो वहां पे +3 आता था। 4 units on the right of xz plane, xz plane के राइट में 4 यूनिट है तो y कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, दैट इज 4, एंड 5 units above the xy plane, above xy plane means it is nothing but 5। समझ में आ रहा है आपको? तो P has coordinates -3, 4, 5 when it is in this position. Now second one is given, second B, in this given the point is on the yz plane। अगर कोई भी पॉइंट yz प्लेन पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली 0 होने वाला है। x कोऑर्डिनेट कैसे रहने वाला है? उसका 0 रहने वाला है। तो दैट पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट हम Q अगर कंसीडर करते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट BQ, तो therefore Q has coordinates, इसका x कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा बिकॉज पॉइंट लाई ऑन yz प्लेन। अगर वो xy प्लेन पे है तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर पॉइंट xz प्लेन पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। और पॉइंट yz प्लेन पे है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। 1 यूनिट टू द राइट ऑफ xz प्लेन, राइट ऑफ xz प्लेन मींस दैट इज 1, and 6 units above the xy plane, that is z coordinate is nothing but 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 1, 6। तो ये साइन कन्वेंशंस आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, जिससे आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1। Now we can easily observe that one point 1, 1, 0 lie in xy plane, this point lie in xz plane, and this point lie in yz plane। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, 1, 0 या 0, 1, 0, 1 और 0, 1, 1, यानी we can easily observe that these all the 3 points are equidistant from each other। तो वैसे तो इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नहीं आना था, क्योंकि पॉइंट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको 3 पॉइंट्स देके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, इट इज आफ्टर द वेक्टर प्रोडक्ट। जब वेक्टर प्रोडक्ट आप सीखेंगे तो उसके एप्लीकेशन में ये पार्ट आता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वी कैन इजीली फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड फ्रॉम दैट it is a spatial triangle that is said to be equilateral triangle, and we have the formula to find equilateral triangle। तो यहाँ पे हम उस तरीके से करते हैं, गिवन A has coordinates 1, या लेट कहेंगे हम, पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हैं तो इसको लेट कहेंगे। लेट A has coordinates 1, 1, 0, B has coordinates 1, 0, 1, and C has coordinates 0, 1, 1। तो हम इसके डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला we can find AB, that is nothing but equal to under root of 1 minus 1 whole square plus 1 minus 0 whole square plus 0 minus 1 whole square, that is nothing but under root of 0 plus 1 plus 1, that is root 2। say AB root 2 आया। Similarly we can say that BC is equal to root 2 as well as AC is equal to root 2। so therefore we can say that triangle ABC
is equilateral triangle with the side √2. √2 यूनिट साइड होने वाला ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. Therefore, area of triangle ABC is given by √3/4 into side square. That is nothing but equal to √3/4 into side square. Side square यानी √2 का स्क्वायर, that is nothing but 2, और that is nothing but √3/2 square units. तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का. समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आप इसको नोट कर लो. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. इफ AB वेक्टर इज गिवन 2i cap minus 4j cap plus 7k cap and A is given 1, 5, 0, then find the terminal point B. इनिशियल पॉइंट दिया है A और टर्मिनल पॉइंट आपको निकालना है. तो हम टर्मिनल पॉइंट को कंसीडर करते हैं. जैसे कि गिवन है, गिवन A हैज कोऑर्डिनेट्स 1, 5, 0. Let B has coordinates x, y, z. B को हमने x, y, z कंसीडर किया. Let A vector and B vector be position vectors of points A and B respectively. तो A वेक्टर आपको मिलेगा I कैप प्लस 5j कैप एंड B वेक्टर मिलेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. Now AB vector is nothing but equal to 2i cap minus 4j cap plus 7k cap. But AB vector is nothing but written as B vector minus A vector is equal to 2i cap minus 4j cap plus 7k cap. When we write AB vector in the form of their position vectors, it can be written as B vector minus A vector. B vector is xi cap plus yj cap plus zk cap minus A vector is nothing but I cap minus 5j cap is equal to 2i cap minus 4j cap plus 7k cap. This is a procedure to find that values of x, y, z. अब इनको साथ में लेते हैं. जैसे x minus 1 into I cap plus y minus 5 into j cap और plus z into k cap is equal to 2i cap minus 4j cap plus 7k cap. And now compare both sides. We have here x minus 1 is equal to 2, y minus 5 is equal to 4, minus 4 and z is equal to 7. तो आपको मिलेगा therefore x is equal to 3, y is equal to 1, z is equal to 7. So therefore B has coordinates 3, 1, 7. These are nothing but coordinates of point B. समझ में आया आपको? तो इसको नोट कर लीजिए कैसे हमने टर्मिनल पॉइंट बी, यहाँ पे कभी टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ सकता है और आपको इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो भी प्रोसीजर यही यूज करनी है. समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इसके बारे में हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था कि इफ the 3 points are collinear if the linear combination of 3 vectors is nothing but equal to, if the vectors, 2 vectors formed by these 2 vectors, these 3 points, 2 vectors formed by these 3 points are collinear, then we can say that 3 points are collinear. तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी भी देखी थी हमने कि if x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0 with
x plus y plus z is equal to 0, then that three vectors are said to be collinear, or that 3 points are said to be collinear points. तो यहाँ पे इन तीन वेक्टर से रिलेटेड हम तीन पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे, और ए बी वेक्टर इज कोलिनियर विथ बी सी वेक्टर ये प्रूव करेंगे. यानी वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर. ये कंसेप्ट यहां पे हमें यूज करना है. तो कंसीडर करेंगे लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C respectively. Therefore, A vector क्या आएगा? 3i cap plus 2j cap minus 4k cap. B vector is equal to आएगा 9i cap plus 8j cap minus 10k cap. और C vector is equal to आएगा minus 2i cap minus 3j cap plus k cap. तो हम फाइंड करते हैं पहले ए बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में डायरेक्ट लिखता हूं. 9i माइनस 3i is 6i cap. 8j minus 2j is plus 6j cap and minus 10k minus प्लस 4k. माइनस जब करेंगे तो प्लस 4k होगा, तो माइनस 6k कैप. ये हो गया 6 इंटू ब्रैकेट आई कैप प्लस 6j आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. BC वेक्टर फाइंड करेंगे. BC वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस B वेक्टर. तो C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या आता है देखिए. C वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो ये आएगा माइनस 11i कैप माइनस 11j कैप प्लस 11k कैप. माइनस 11 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये आएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. देखिए ये आ गया आपका ए बी वेक्टर और ये आ गया आपका बी सी वेक्टर. तो ये जो ब्रैकेट आपको सेम दिखता है, इसमें से आप क्या लिख सकते हो? कैन आई राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट 1/6 इंटू, यहां पे लिख सकते हैं 1/6 इंटू ए बी वेक्टर is nothing but minus 1/11 into BC वेक्टर. क्योंकि 6 को इधर लेके जाएंगे तो 1/6 AB वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J माइनस K आएगा, और माइनस 11 को इधर लेके जाते हैं तो माइनस 1/11 इंटू BC वेक्टर इज इक्वल टू आएगा I प्लस J माइनस K. तो राइट साइड का जो ब्रैकेट है वो सेम रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट AB वेक्टर is nothing but minus 6 upon 11 BC vector. Means here we can say that AB vector is scalar multiple of BC vector. Therefore we can say that AB vector and BC vector are collinear. And B is a common point in AB vector and BC vector. Therefore, we can say that points ABC, therefore, points ABC are collinear. इसमें पॉइंट्स कोलिनियर लिखने के लिए ये दो वेक्टर में एक पॉइंट तो भी सेम होना बहुत जरूरी है. तो B point is same in this B vector, AB vector and BC vector. That's why we can say that 3 points are collinear points. समझ में आ रहा है आपको? तो इसको नोट कर लीजिए. हम क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ओके, चलो नोट करो. चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड. यहां पर
show that the following points are collinear when P is given 4, 5, 2, Q is given 3, 2, 4 and R is given 5, 8, 0. कंसिडर करेंगे सेम प्रोसीजर यूज करनी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की थी. लेट P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर बी position vectors of points P, Q, R respectively. Therefore, we can say that P vector is 4i cap plus 5j cap plus 2k cap. Q vector is nothing but 3i cap plus 2j cap plus 4k cap. And R vector is nothing but 5i cap plus 8j cap. तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं पी क्यू वेक्टर, दैट इज नथिंग बट क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर. क्यू माइनस पी इज माइनस आई कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप. समझ में आ रहा है आपको? वैसे हम फाइंड आउट करते हैं क्यू आर वेक्टर, या पी आर भी किया तो भी चलता है, आप कोई भी कर सकते हैं. हम फाइंड आउट करते हैं क्यू आर वेक्टर, तो 5i minus 3i is 2i cap, r vector minus q vector, that is 2i cap. 8j minus 2j is plus 6j cap और minus 4k cap. इसमें से हम -2 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में आएगा माइनस i cap माइनस 3j cap प्लस 2k कैप. तो हम लिख सकते हैं therefore QR वेक्टर इज -2 into PQ वेक्टर. ये आपको रिलेशन मिलेगा. therefore we can say that QR vector is collinear with PQ vector and point Q is common to both QR vector and PQ vector. Therefore, we can say that points PQR are collinear points. Are collinear. समझ में आया आपको? प्रोसीजर वही है जो हमने फर्स्ट में यूज किए थे, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क में दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 26 सेम है. शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इन द सेम वे. पहले आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड आउट करो और शो दैट ए बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर. आप कुछ भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है देखिए. इफ द वेक्टर्स 2i minus 2j plus 3k and 5i minus 4i minus 5j plus 6k are collinear. अब हमें पता है when two vectors are collinear their coefficients of I, J, K are in proportion. तो let's हम इसको a वेक्टर कहते हैं. a वेक्टर is 2i cap minus qj cap plus 3k cap and b vector is equal to 4i cap minus 5j cap and plus 6k cap. तो therefore हम यहाँ पे और as a vector is collinear with b vector, therefore we can say that 2 by 4 must be equal to minus q upon minus 5 is nothing but equal to 3 by 6. Therefore, we have 1 by 2 is equal to q by 5 and therefore q is nothing but equal to 5 by 2. This is the value of q. दोनों साइड को 1 by 2 आने वाला है, इसको q by 5. q by 5 is 1 by 2. It means q is nothing but 5 by 2. In this way, the value of q is 5 by 2. Okay? This is about the question number 27. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ.
देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। आर द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी कोप्लेनर? जस्टिफाई योर आंसर। अब जब 4 पॉइंट्स के कोप्लेनरिटी के बात चलती है तो हमें 3 वेक्टर फाइंड आउट करने हैं फॉर्म्ड बाय दीज 4 पॉइंट्स। जैसे हम 3 पॉइंट कोलिनियर के लिए 2 वेक्टर फाइंड करते हैं, वैसे 4 पॉइंट कोप्लेनर दिखाने के लिए हमें 3 वेक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले हम कंसीडर करेंगे लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स of points A, B, C and D respectively। तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और डी वेक्टर आएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इन 4 वेक्टर्स से लेके और 4 पॉइंट्स को लेके हमें 3 वेक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे ए बी वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो माइनस आई माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 0। फिर हम फाइंड करेंगे एसी क्या, एसी वेक्टर। एसी वेक्टर इज नथिंग बट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आई माइनस आई 0 हो जाएगा। जे प्लस जे इट इज 2 जे कैप एंड के माइनस के 0 हो जाएगा। वैसे हम एडी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एडी वेक्टर इज डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डी में से गया 2 आई माइनस आई इज आई कैप माइनस 3j प्लस जे इज माइनस 2j कैप और 4k माइनस k इज प्लस 3k कैप। ठीक है, तो यहां पे ए बी वेक्टर, एसी वेक्टर और एडी वेक्टर 3 वेक्टर हमने फाइंड किए। अब 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब उनका लिनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है या any one of these 3 vector is a linear combination of another 2 vectors। तो ये पॉसिबल है क्या, ये चेक करना है हमें whether satisfying that one vector is a scalar multiple linear combination of another 2 vectors। ये हमें कंफर्म करना है कि एक वेक्टर दूसरे 2 वेक्टर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में है क्या। तो हम एक वेक्टर को कंसीडर करेंगे, लेट्स ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सम लैम्बडा इंटू एसी वेक्टर प्लस सम म्यू इंटू एडी वेक्टर। इसके पहले भी एक एग्जांपल में हमने ये कंसेप्ट यूज किया था। हमें देखना है कि वेदर द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू एग्जिस्ट और नॉट। तो हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर, एसी वेक्टर और एडी वेक्टर के ये जो वैल्यूज हमने निकाले हैं इसमें डाल के लैम्बडा और म्यू की 3 इक्वेशंस फाइंड करने हैं। 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करके आपको लैम्बडा और म्यू के वैल्यूज निकालने हैं और वी हैव टू चेक whether that 2 values of lambda and mu satisfies the third equation or not। अगर लैम्बडा और म्यू के मिले वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे ये 4 पॉइंट कोप्लेनर होते हैं। और अगर लैम्बडा और म्यू के आए हुए वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब लैम्बडा और म्यू एग्जिस्ट नहीं होता। और लैम्बडा और म्यू एग्जिस्ट नहीं होता तो one vector cannot be written in the form of linear combination of another 2 vectors, hence we can say that vectors are not coplanar। तो हमने कंसीडर किया ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एसी वेक्टर प्लस म्यू इंटू एडी वेक्टर। तो ये जो 3 वैल्यूज है यहां पे डालेंगे। ए बी वेक्टर क्या है, देयरफॉर ए बी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ब्रैकेट
AC vector is nothing but 2j cap or plus mu into bracket I cap minus 2j cap plus 3k cap. Therefore we can say that minus 2I cap plus 2j cap, लेफ्ट साइड वैसे ही रखो, इज इक्वल टू अब म्यू इंटू आई कैप. देखो आई कैप के लिए यहां पे कुछ भी नहीं है, तो ये म्यू आई कैप प्लस ये 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इंटू जे कैप, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इंटू जे कैप प्लस 3 म्यू इंटू के कैप. अब दोनों साइड को कंपेयर करो. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे, जिसमें मिलेगा देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू -2. एक इक्वेशन मिल गया या एक वैल्यू ही डायरेक्ट मिल गई. यहां पे जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट म्यू या लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, आपको 3 इक्वेशन भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो एक मिल गया म्यू इज इक्वल टू -2. जब जे कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2. Therefore we can say that lambda minus mu is equal to 1. इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे. और थर्ड जब k कैप को कोएफिशिएंट चेक करते हैं तो 3 म्यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि यहां पे k वेक्टर नहीं है, k कैप नहीं है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0. इसको लिखेंगे थर्ड. अब सिर्फ अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू डायरेक्ट. अब देखिए यहां पे एक बात हो गई कि म्यू की जो वैल्यू है एक ही टाइम 2 वैल्यूज आ गई, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड we can observe that म्यू की वैल्यू डिफरेंट है. यानी क्या ऑब्जर्व किया हमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन ऑब्जर्व दैट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों एग्जिस्ट नहीं होते? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकते. तो यहां पे लिख सकते हैं हम therefore we can say that AB vector is not a linear combination of AC vector and AD vector. Hence we can say that therefore AB vector, AC vector and AD vector are not coplanar. वो कोप्लेनर हो ही नहीं सकते, are not coplanar. और ये अगर कोप्लेनर नहीं है तो therefore we can say that points ABCD here are not coplanar. अब यहां पे आपने थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना. आप जब भी इनको कंपेयर करेंगे और आपको ये वैल्यूज मिलेंगे, अगर ऐसा कभी होता है कि एक इक्वेशन में एक लेटर ये जो भी आपने आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है उसकी वैल्यू अलग और दूसरे की वैल्यू अलग आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा भी लिख सकते हैं हम. ठीक है, म्यू इज इक्वल टू -2 और म्यू इज इक्वल टू 0 दो वैल्यूज म्यू के हो नहीं सकते, एक ही वैल्यू, क्योंकि हमने ये थ्योरम प्रूव किया हुआ है कि देयर आर एग्जैक्टली इट इज लिनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज यूनिक. किसी भी वेक्टर्स के लिए कोप्लेनर जो वेक्टर होते हैं, तो यूनिक लिनियर कॉम्बिनेशन हमें यहां नहीं मिल रहा है, यानी ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं है. तो जब भी आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, आप कोई भी 2 इक्वेशंस, तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशंस सॉल्व करो और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो और थर्ड इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करें. इसके आगे के क्वेश्चंस में हम वो देखने वाले हैं. तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस काफी है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29. थैंक यू.